Hello and welcome to today's podcast. I am your host Manish Nema. I am excited to introduce our guest Yogita Rathore, a dynamic mindset mentor, NLP and manifestation coach, and the founder of Mindshift Academy. She also serves as the head of HR at Vertices Partners. Yogita's journey is one of the incredible transformation, moving from in overcoming financial struggles and self-doubt to embracing her true potential. Now she helps others do the same by blending NLP and the law of attraction and self healing techniques to create lasting change. As a mentor, HR leader, and a mother, Yogita empowers individuals to break through their limiting beliefs and shift their perspective for a more fulfilling life. Let's dive into her inspiring story and learn how a simple shift in thinking can lead to life changing transformations. Namaste, Yogita ji. So, welcome to this podcast. I would like to start with your mind shift mentor thing, right? And how it is different from other coaching approaches. First of all, Manishi, thank you very much for inviting me for on your channel for this podcast, and I'm actually very excited. And about this mind shift mentor, I'll tell you why I call myself as a mind shift trainer, because it is all about changing and shifting your perspective. So what happens, at times जब हम हमारा एक भी नजरिया चेंज करते हैं तो Mm-hmm. पूरी लाइफ हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाती है. I'll give you example. Let me explain why I call myself as a mindship mentor. It's all about helping people to see their life through the different lenses. Like if you put pair of the sunglasses, at first everything seems the same, but when you start adjusting, you start noticing the colors, the contrast, and you get the clarity Right. that was always unseen. And that's how it's all about shifting the perspective, and that what does through that to your mind. Correct. So I focus mainly on guiding the transformation. I guide them and help them to transform their journey. Okay, I help people to break free their limiting beliefs and embrace the new ways of thinking. जो नजरिए उनको अभी तक नहीं मिला है, हाँ I हाँ. help them to see that perspective, and that's where the magic begins. And that's how I come up with this idea of calling myself it's mind shift mentor, because it's all about changing and shifting your thinking. Correct. What a fascinating Yogita ji. It's such a unique concept, and I would love And how it focuses on deep mental shifts. I'm sure many listeners are curious to learn more about how this approach can impact their lives. We'll touch upon that a little later. Can you tell us a little bit about your journey and what inspired you to become a mind shift mentor? so if I begin my journey, I'm coming from a very humble, middle class family, born in middle class family, where I was actually surrounded by, people who are facing, financial struggles. हम्म. So, सटल में वो sense of scarcity वो पकड़ लिया था मैंने. करेक्ट, वो सभी के साथ, मेरे साथ भी यही रहा है. True, true. So I was that girl who constantly felt inferior, doubted myself, unsure about, what I truly want in my life. And I was always in the dilemma कि मुझे करना क्या है. I always used to feel stuck in my life, with a feeling of doubting myself, the scarcity mindset. I needed that change. So I was, continuously looking for the answer कि क्या होगा, मतलब कैसे करना है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. हाँ एक हाँ. पॉइंट ऐसा आ जाता है ना मनीष जी, वहां पे हम लोग मतलब we feel overwhelmed and we feel like कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हाँ, मतलब है. ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है. Correct, correct. Because I am the elder one in my family and no one was there to guide me.
And that's where everything shifted. So my entire thinking shifted by just one book, and that was the book is Think and Grow Rich by Napoleon Hill. The wordings that fascinated me कि think and grow rich ये क्या फंडा है. आई मीन हम्म. जहाँ पे मैं ऑलवेज स्कैरसिटी के माइंडसेट से अपने पे डाउट करती रहती हूँ, एंड ये मतलब भाई साहब क्या बोल रहे हैं, थिंक मतलब सोचो और अमीर बनो. So I was always, I remember telling my husband, how can we even think big when we are not even 5%, 5% of chodo, we are not even 1% of that. But then this book literally opened my eyes, हाँ and हाँ. that's how I understood the power of the subconscious mind. And then it completely, transformed my perspective. हम्म. So I started, I started change how I viewed my world. जो पहले मैं देखती थी उससे मेरा नजरिया एकदम अलग अलग हो गया. And through this shift, I manifested my coach because ये subconscious mind का मुझे इतना fascinating लगा, and वो deeper level पे understand करते गई, and that's how I manifested my coach in 2018. And I began my journey to become a mind shift mentor. And today, I run my own classes. I have the weekend classes. I take one-to-one counseling. Even of course, I'm professionally, working as a HR head. So balancing my career and also living my passion. So it's like combination, and I'm like it's of course it is challenging, but I'm liking this journey. So बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मुझे मैंने मैनिफेस्ट की है, और उसने मुझे ओवरऑल लाइफ में यहाँ पे डेवलप करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ. एंड ऑफ कोर्स माय विजन इज टू ट्रांसफॉर्म at least 10 lakhs people by 2030. So with this purpose, I've started my journey to become a mind shift mentor. वाह, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी. इट्स Thank you. इनक्रेडिबल हाउ यू टर्न योर challenges into a platform to help others. It really shows that transformation is possible for anything or anyone willing to take the first step. Absolutely. और जो Absolutely. मैनिफेस्टेशन की जो आपने बात करी, नेपोलियन हिल की जो बात करी, हमारे दर्शक ज़रूर इसको कोरिलेट करेंगे और आपसे ज़रूर संपर्क करें इस बारे में. सो Definitely. मेरा कुछ तीसरा सवाल ये है कि यू मेंशन्ड अबाउट फेसिंग फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, राइट? सेल्फ Correct. डाउट, आपने कैसे उनको ओवरकम किया और क्या लेसन आपने लर्न करे उनसे? So सच्ची बताओ मनीष, ये आसान नहीं था. हाँ हाँ. अभी भी आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रीचिंग माय that self which I am desiring at this point. Because if you are in a if you are born in a middle class family, तो वो बचपन से ही आपने स्कैरसिटी देखी है. मेरे 4 भाई बहन हैं, तो हम सारे सब लोग को एक चीज मिलती थी, उसके हम 4 हिस्से हिस्से करते थे. तो मेरे भी 4 भाई बहन हैं और हमारे साथ भी यही है. ट्रू ट्रू. सो हमें सब कुछ, और बीइंग द एल्डेस्ट इन द फैमिली, हमें सब कुछ वो हिस्से के साथ थोड़े में ही एडजस्ट करो. एंड फिर वो स्कैरसिटी के पैसों की भी मैंने दिक्कत देखी है, क्योंकि मेरे पिताजी को फिर हमको डेली लाइफ मतलब डेली नेसेसिटीज मीट करने के लिए भी लोन लेना पड़ता था. अगर कुछ एडिशनल फीस पे करनी है उसके लिए भी कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता था. तो जब मैंने वो सब देखा सटल वे में, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ये सब मैंने बिल्ड कर लिया अंदर ही, मतलब सबकॉन्शियसली. इवन इफ आई हैव टू इवन टुडे, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, आई थिंक 2-3 टाइम्स. पहले प्राइस चेक करूंगी कि क्या है, फिर देखूंगी कि ये वर्थ है नहीं है. तो एट टाइम्स इट इज गुड, बट इफ अगर वो हमारी चीज नेसेसिटी है, फिर भी अगर हम सोच रहे हैं, तो यू कैन लिटरली फील कि ये कहाँ से आ रहा है. सो मैंने वही स्कैरसिटी और वही लैक मतलब वहां से कैच कर लिया. एंड धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं, दिस इज समथिंग बॉदरिंग मी एंड दिस इज नॉट द वे आई कैन लिव. एंड जब मैंने वो स्टार्ट किया, बुक रीड करना स्टार्ट किया, दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड कि नहीं, ये जो मैं सोच रही हूँ, दैट इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द बिलीव्स दैट आई वाज हैविंग. राइट. बट ये सबके साथ तो नहीं होता. करेक्ट.
जैसे एक अमीर इंसान है, उसको इतनी स्ट्रगल और इतनी मेहनत अपने पैसे की बिलीव्स पे नहीं करनी पड़ती जितना हमें करनी पड़ती है बिल्कुल एज अ बिल्कुल। वर्किंग मैं एज अ मिडिल कोरिलेट करता क्लास। हूँ इस स्टोरी से बिल्कुल। मेरे साथ भी यही संघर्ष रहा और ये स्ट्रगल्स मैंने भी सही। लेकिन मैंने भी अपना माइंडसेट काफ़ी चेंज किया, अभी रिसेंटली चेंज किया। और मतलब एक वो अबंडेंस वाला माइंडसेट लाना पड़ता है, राइट। और करेक्ट। आपके सेल्फ डेवलपमेंट, और आपने तो काफ़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी यूज़ करी, तो ये स्ट्रगल आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। और ट्रू आपने ट्रू। जैसे ओवरकम किया, आप कंटिन्यू करिए, मैं तो बीच में अपनी कहानी सुनाने लगा। यस यस यस। सो सो मुझे मतलब रियलाइज हुआ कि नहीं, समवेयर आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो देन आई स्टार्टेड जब मैंने ये माइंड शिफ्ट मेंटरी की जर्नी स्टार्ट की, तब मैंने धीरे 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 रियलाइज करना चालू किया कि सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। बाकी सब चीजों पे करो ना करो, सेल्फ डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। और मैं सारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहती हूँ। देखिए, ये जो हमारा हम क्या करते हैं कि जो 10% जो हिस्सा है उस पे इन्वेस्ट जरा भी नहीं करते, जो 90 रिमेनिंग 90% है उस पे हम सारा खर्चा करेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, सारी चीजें, अच्छे कपड़े पहनेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये जो हिस्सा है जिससे आपकी लाइफ चेंज होती है, उस पे कोई ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये पूरा ऑपोजिट होना चाहिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट की। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, लिटरली मैंने लाखों खर्चे हैं इसके लिए। हम्म। और फिर मुझे धीरे 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 वो अबंडेंस माइंडसेट की ओर मैं बढ़ती चली गई। फिर भी ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो भी चाहो वो आए आपकी लाइफ में, मतलब जो अनचाही चीजें भी आ सकती है। बट अगर वो आपका कुछ लॉस भी हो रहा है तो उससे आप कैसे उभरते हो, वो एक चैलेंजिंग हो जाता है। और वहीं से आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अबंडेंस की ऑफ कोर्स एक फ्रीक्वेंसी में रहना जरूरी है। लेकिन साथ साथ में अगर आपके साथ कोई और चैलेंजेस आए, सो डू नॉट सेट बैक, आपको बैठना नहीं, आपको कंटिन्यूस बढ़ते रहना है। समटाइम्स यूनिवर्स के अलग प्लान्स होते हैं, आप कुछ और चाहते हो और होता कुछ और है, बिल्कुल। लेकिन दैट्स हैपनिंग फॉर द बेटर, बिगर एंड बेटर। So that is what I believe in. That's how I started investing in myself and changed my perspective. And then I started that, living in the abundance frequency. That's such a powerful lesson, Yogita ji. And it's amazing how resilience and mind shift can turn struggles into stepping stones, I would say. True, I true. think many listeners will find their hope in your journey, and the what we talked about, the mindset shift and the abundance mindset, and keep working and keep focusing even though universe has other plans. uh, if even if you are failing, but keep learning from those failures. And Correct, yeah, absolutely. so let's talk about something about your niche, जो आपका NLP और LOA है, सेल्फ हीलिंग है। हाउ डू दीज कॉन्सेप्ट्स वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ्स? Okay. Being as a Mindshift mentor, I work on a different, I apply different techniques, and I help people with this different techniques like NLP. So NLP is nothing but it is neuro linguistic program. So अच्छा। neuro linguistic program मतलब क्या है? Neuro means हमारा brain, linguistic यानी language, and programming यानी behavior, जो हमारा जो ब्रेन का एक बिहेवियर होता है। ठीक है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं मनीष जी, ठीक है, हम एक लैंग्वेज के फॉर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे ब्रेन की भी एक लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज क्या होते हैं जो हम एनएलपी में सब मोडालिटीज बोलते हैं। उसके कुछ विजुअल्स होते हैं, उसके कुछ इमेजेस होते हैं, उसके कुछ ऑडियोज होते हैं। सो थिंक ऑफ एनी पर्टिकुलर मेमोरी। ठीक है, आपको बचपन में किसी ने डांट दिया था। ठीक है, इमीडिएटली आपको उनकी आवाज सुनाई देगी, या फिर आपको लपड़ की आवाज सुनाई देगी, कुछ और सुनाई देगी, वो जरूर सुनाई देगा। एंड हाउ यू फेल्ट वेरी बैड, और फिर जाके वो एक बैड मेमोरी की तरह उसमें स्टोर हो गया। करेक्ट।
सो राइट। माइंड की जो हमारी ब्रेन की एक पैटर्न्स बन जाती है। पैटर्न्स जैसे कि पैटर्न्स ऑफ फियर, बचपन में या फिर अभी हम कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे कि कोरोना में हजारों लोगों ने अपने नियमन को लूज किया है। तो जब ये सारी जर्नी में ये सारी घटनाएं होती रहती है, तो हमारे जो ब्रेन में हर चीजें एक इमेज, एक ऑडियो, एक विजुअल्स की तरह स्टोर होती रहती है। सो एनएलपी क्या करता है, जो हमारी पैटर्न्स ब्रेन में स्टोर हो जाती है, कुछ कुछ चीजें अच्छी होती है, जैसे कि आपको मतलब आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, ये सारी पैटर्न्स अच्छी है। लेकिन कुछ जो अननेसेसरी पैटर्न्स है, लाइक डाउटिंग योर सेल्फ, फीलिंग inferior, आई यूज टू फील लाइक दैट, सो फीलिंग inferior, फीलिंग नॉट गुड इनफ, इसकी भी पैटर्न्स हो जाती है। तो एनएलपी क्या करता है, उस पैटर्न्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है विद द वेरियस टेक्निक्स। व्हेन इट कम्स टू एलओए, एलओए इज नथिंग बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आजकल तो आपने सुना होगा बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशन के कोचेस आपको मिलेंगे, और दिस हम्म। इज नथिंग न्यू इन टूडेज वर्ल्ड। Law of attraction is very common, but law of attraction, whether you believe it or you will not believe it, it works. So what law of attraction says is like attracts likes. Let's say, you and I and you have the similar mentality, so we are attracting towards each other because of the frequency we are in. तो जब करेक्ट। हम ई फ्रीक्वेंसी में अगर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो हम मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि दो बेवड़े नहीं, हम सॉरी टू से, पर दो बेवड़े अपने मतलब किसी ना किसी बेवड़े को फाइंड कर ही लेते हैं। सिमिलरली, अगर सिमिलर मेंटालिटी वाले हैं, लाइक यू आर अ बिजनेसमैन, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट मिल ही जाता है जो आपकी सिमिलर माइंडसेट की तरह, मतलब आपकी तरह बिहेव करता हो, या फिर आपकी वन स्टेप अबोव हो। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे टाइम पे हेल्प करता है, एंड इट इज लाइक इट्स प्योरली वर्क ऑन द एनर्जीज एंड द वाइब्रेशंस। So, by using this particular technique, you can attract literally whatever you desire in your life. ओहो। And the very third is self-healing. अच्छा। So, मेरा सबसे ज्यादा एंड सबसे फेवरेट वन ऑफ द टॉपिक इज सेल्फ हीलिंग। बिकॉज सी, मनीष जी, आप कितने भी मतलब माइंडसेट या माइंडसेट के बारे में बात करोगे, या फिर कितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करोगे, पर आपको खुद पे ही प्यार नहीं है और खुद के ही बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो कुछ भी काम नहीं करता। बिल्कुल सही। करेक्ट। बिल्कुल सही बोला तो आपने। सो सेल्फ अवेयरनेस तो सेल्फ हीलिंग हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले तो सेल्फ अवेयर रहो कि आप क्या इमोशंस फील कर रहे हो, कौन से इमोशंस हावी हो रहे हैं, कौन से नहीं हावी हो रहे। आजकल के जमाने में, मतलब अभी रिसेंट केस हुआ अतुल का, जहाँ पे लिटरली ही कमिटेड सुसाइड। हम्म। That was really sad part of the today's reality, because we ourselves are not aware about what is happening in our life, and then we feel like ending our life there, and they feel that this is the best solution. So या, why it is इट वाज happening? वेरी सैड। It was, I got amazed कि ये लोग मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, just because they do not have the perspective. And it all starts from the self healing and self love. So self healing is nothing but to accept. First you accept yourself the way you are, and then जहां पे भी आपकी वीकनेस है, स्टार्ट इम्प्रूविंग ऑन दोज वीकनेसेस, रादर जजिंग। जैसे कि मैं इंफीरियर फील करती थी, आई ऑलवेज यूज टू डाउट माई सेल्फ। सो नाउ मैं एक डिफरेंट लेवल पे क्यों हूँ, बिकॉज नाउ आई हैव अंडरस्टूड के जो भी है, दैट वॉज माई पास्ट, but now I have overcome it, and whatever I am doing, whether it is good, not good, but it is for for my betterment. So I am accepting myself just the way I am, and on a daily basis I'm working on myself, I am investing on myself, realizing कि कहाँ मेरी गलती है, कहाँ नहीं गलती, what is right, what is wrong for me, and just अपने आप से बस प्यार करो, और बस खुल के मगन होके अपने पर्पस पे काम करो।
That is all about self-healing. And these three techniques, NLP, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सेल्फ हीलिंग, क्या करता है, आपके जो पूरा डीपली रूटेड जो भी आपके ट्रॉमास है, जो भी आपके ट्रॉमास है, लिमिटिंग बिलीव्स है, सेल्फ डाउट है, इमोशंस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारी जगह पे आप फील स्टक फील कर रहे हो, तो ये सारी टेक्निक्स आपको जहां पे भी आप अटके पड़े हो उसके रूट कॉज को फाइंड करके उसको आपको निकालने में और आपको ट्रांसफॉर्म करने में ये तीन टेक्निक्स हेल्प करती है। बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन दिया आपने न्यूरो लिंग्विस्ट लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सेल्फ हीलिंग का। और इट्स अमेजिंग हाउ दीज टूल्स कैन हेल्प कॉम्प्लीमेंट ईच अदर टू क्रिएट सच अ Yes. इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स। आई एम श्योर हमारे जो लिसनर्स हैं वो इस चीज़ को ट्राई करने के लिए ज़रूर इच्छुक होंगे एंड दे शुड ट्राई इट। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और था इनमें, इसमें मेडिटेशन का कितना योगदान है? मेडिटेशन का बहुत योगदान है, लेकिन मेडिटेशन के ना कुछ कुछ मिथ्स भी बने हैं मनीष जी। व्हेन वी से मेडिटेशन करना है तो हमें चुपचाप एक काम पीसफुल जगह पे शांत होकर बैठ जाना है, और फिर वो जगह पे बैठने के बाद हम वही सब सोचने लगते हैं। So of course that is one of the way of meditation, but there are multiple meditations. Like when you are listening to your favorite song, और उसमें आप मगन हो जाते हो। अगर आपको डांस पसंद है और वो डांस में आप मगन हो जाते हो और वो ट्रांस में चले जाते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज नॉट जस्ट अबाउट सिटिंग आइडल एंड आपको वो फोकस करना है, शांत रहना है, एंड देन थिंक द इमेजिनरी वर्ल्ड। इट इज वन ऑफ द फॉर्म, but if that form is something not working for you, there are multiple meditations technique that you can try. But yes, meditation really helps, because at times अगर हमें सेल्फ हीलिंग करनी है, हमारे नेगेटिव बिलीव्स को निकालना है, हर चीज के लिए एक शांत माइंड होना बहुत जरूरी है। कियोस में और एक ही तरह का लाइफ जीने में आप चेंज नहीं हो पाओगे। सो एक शांत माइंड के लिए सबसे पहले वो पीसफुलनेस का स्टेट में होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल एंड सही। दैट्स व्हाई मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट। हाँ, जैसे कि मैंने भी विपश्यना करी थी। विपश्यना एक आई थिंक वो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है, तो मैंने यस, 3-4 बार करी है उसको। तो उसमें आपको बस शांत रहना पड़ता है और अपने थॉट्स को जो भी आ रहे हैं आने दो। आप थोड़े समय बाद जब करोगे, 15-20 दिन के बाद, तो आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं, कौन से पॉजिटिव थॉट्स हैं, किनको इग्नोर करना है, किनको नहीं इग्नोर करना है। तो ट्रू, वो सेल्फ रियलाइजेशन उसमें आने लगता है धीरे धीरे मेरे ख्याल से। करेक्ट। तो वो मैंने प्रैक्टिस करी है काफ़ी उसकी, और मैं करता हूँ अभी भी, डेली आधे घंटे करता हूँ मैं। और मनीष जी, ऐसा नहीं है कि अगर मेडिटेशन करना है तो आपको आधा घंटा 1 घंटा भी देना है। अगर आप दिन में 5 मिनट भी खुद के लिए निकालते हो, वो ब्रीदिंग, अगर ब्रीदिंग करके शांत भी हो जाते हो ना, द पर्पस इज मेट, मेडिटेशन इज डन। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट कि वो स्टेट में आना है जहां पे आप एक रैशनल पर्सन की तरह सोच पाओ और एक वाइज डिसीजन ले पाओ। बिल्कुल तो सही बोला। मेडिटेशन 5 और 10 मिनट का भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि आपको 1 घंटा भी लगाना है या 2 घंटे भी लगाना है। नहीं, वो मतलब हाँ, मतलब एग्री करता हूँ, लेकिन इनिशियली आपको टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि आपको बिल्ड करनी करेक्ट, पड़ेगी वो प्रैक्टिस, राइट? ट्रू ट्रू। इनिशियली टाइम टाइम देना पड़ता है, लेकिन मनीष जी आजकल के वर्ल्ड में सबको ना सब कुछ क्विक फिक्स चाहिए। सो ये बात नोबडी सही है। हैज टाइम, नोबडी हैज टाइम, हाफ एन आवर का भी टाइम दो तो उनको मतलब स्ट्रेस लगता है। व्यूअर्स स्पेशली कैन रिलेट, बिकॉज हम लोग रील्स पे मतलब आधा घंटा भी चला जाए पता नहीं चलता, लेकिन मेडिटेशन करने बोलो तो यू कैन 5-10 लिटरली मिनट में हालत ख़राब हो जाती है। या नहीं, बट दैट ये इज सही बात है। व्हाई। लोगों को थोड़ा सा, जो आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनको मतलब उनका अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, राइट? तो करेक्ट, लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली मैं अगर आईटी प्रोफेशनल्स की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लाइफ होती है। और मैं तो जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम रख रहा हूँ उसमें मैंने मेडिटेशन को खास फोकस किया है। आई थिंक ये एनएलपी और ये सारी टेक्निक्स भी काफ़ी मदद करेंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ट्रू। तो आई थिंक तो चलते हैं आगे। सो अब हम बात करेंगे आपके जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में।
So how did your experience as a head of HR at Vertices Partners shape your coaching philosophy and approach? Okay. So, working as a head HR and, also working on my passion. So, professionally, I'm a head HR. And, if you're asking about my purpose, then I am a Mindshift mentor. So, there are a lot of similarities in my profession as well as purpose. So, as Hmm. a head HR, I, work closely with the people, understanding their challenges, उनको motivate करना, उनके untapped potential को निकालना, एंड ऑफ कोर्स एक ही तरह के बंदे नहीं होते, सो वी आई हैव टू वर्क डाइवर्स पर्सनालिटीज, बिल्कुल. और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी होते हैं. So this gives me the importance, every person is different, and that's how ये empathy, जो हम बोलते हैं, empathetic, उसका रोल हाँ. बहुत जरूरी हो जाता है. सिमिलरली, जब मैं मेरे पैशन की बात करती हूँ, so as a passion, I am a mind shift mentor. So I realized that, this principles जो मैंने मेरे HR प्रोफेशन में अपनाए हैं, लोगों को एम्पथेटिक वे से देखना, उनके पोटेंशियल को ढूंढना, ये सारी चीजें, कहीं ना कहीं मेरे कोचिंग बिजनेस से भी मतलब रिलेट करती है, बिकॉज इवेंचुअली आई लुक फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. If the person is coming to me, asking for my help, आई मेक श्योर कि उनको ट्रांसफॉर्म करूं. और ट्रांसफॉर्म होने के लिए वो एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. सो दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन हैज गिव मी दैट, एक स्ट्रेंथ हो गया है मेरा, कि मैं लोगों से इजीली कनेक्ट कर पाती हूँ. और कोचिंग कोचिंग की वजह से मैं वो डीपर लेवल पे, वो पर्सनल लेवल पे हेल्प कर पाती हूँ. एंड दिस सिनर्जी allows me to combine my professional expertise as well as my passion for transformation, and ultimately it's leading the fulfillment of the my path of becoming a mind shift mentor. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. सो मतलब आपकी जो खुद का जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, एम्पैथेटिक और इमोशनल इंटेलिजेंस, इसने काफ़ी रोल प्ले किया है आपके True. पैशन के लिए, राइट? सो Absolutely. it's really beautiful to hear that how your HR experience and unique insight into understanding people and their growth journeys, it really helped you in your coaching work, right? So uh, mm, I just wanted to understand more about a little more about the emotional intelligence play in both HR leadership and coaching. So, what is your perspective in emotional? You talked about empathy, obviously, but just to touch upon emotional intelligence and things like that, right? So, what's your view and perspective on that? Okay. So emotional intelligence, when we talk about this, so as a HR leader, uh, in the corporate environment, emotional intelligence plays a very, very important role to, create a positive work culture. So we have this open door policy, we have the friendly atmosphere, where we foster the trust, empathy, strong relationship within the teams. So as a leader, having the high emotional intelligence, can navigate the complex interpersonal dynamics. So we can, Correct. agar if we have the higher level of emotional intelligence, then we can resolve conflict, provide the effective feedback, and while maintaining the supportive, because अगर कोई बंदा प्रॉब्लम लेके आता है, सो हमें दोनों साइड पे देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट क्या सोचेगा, एज वेल एज एम्प्लॉय पे क्या इम्पैक्ट होगा. सो ये एक सिनर्जी के साथ, दोनों को साथ में लेके, वो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ काम करना पड़ता है कि दोनों सिनर्जी के साथ बैठे. सिमिलरली सिमिलरली इन कोचिंग इंडस्ट्री ऑल्सो, इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेज अ वाइटल रोल. Hmm. कोचेस, आज आप देखोगे जो भी कोच जो अपने पार्टिसिपेंट्स है या क्लाइंट्स है, उसके पेन्स को अगर वो डीपर लेवल पे समझता है, उनकी इमोशनल ट्रिगर्स क्या है उसको समझता है, सो वो एक बेटर एडवाइस दे सकता है, बिल्कुल. एक कंस्ट्रक्टिव वे में उसको एक डायरेक्शन दे सकता है.
और कोचेस का, स्पेशली मेंटर्स का काम ही यही है टू क्रिएट दैट सेफ स्पेस जहां पे वो ग्रो कर सके और ट्रांसफॉर्म हो सके। दे शुड, जो भी अगर हमारे पास आता है, दे शुड फील हर्ड, अंडरस्टूड, तो कोई हमें बात सुने, हम कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई तो हो। सो ये इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल अवेयरनेस आई एम एबल टू maintain my professional life as well as my as a mentor. I am also fostering the relationship with my participants also. Okay, that's great. And that's so true. Emotional intelligence is such a critical skill, not just for leaders, but for everyone, I would rather say. And it is inspiring how you have integrated it into your both professional and coaching journeys. Uh, so, how do you balance your professional responsibility as an HR leader with your coaching work and personal life? आप मुझे सच अगर सच में बोलो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टाइम्स, बिकॉज इट्स नॉट इजी कि आपके यहाँ पे आपके सब मैनेजमेंट की जो भी एक्सपेक्टेशंस है उनको मीट करना है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना है, एज अ मदर घर पे भी अपने टाइम देना है, प्लस अपने पैशन पे भी काम करना है। So at times it becomes, I become, I feel overwhelmed. But Hmm. yes, balancing my professional and personal thing, दोनों को अगर मेंटेन करना है, सो आई हैव अंडरस्टूड दैट मुझे एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, और आई एम अवेयर कि मैं क्या इमोशंस फील कर रही हूँ और कहाँ मुझे प्रायोरिटीज देनी। लेट्स से अगर कुछ ऑफिस में कुछ ज्यादा ही बड़ा इश्यू है, सो आई नो कि मुझे वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। ऑन द अदर साइड, इफ माई चाइल्ड इज सिक एंड ही नीड्स माई अटेंशन, then I know what priorities I have to give. He need my attention, so I have to give priority to him. So मुझे बस जिस हिसाब से सर्कमस्टेंसेस होती है, आई जस्ट गिव द प्रायोरिटी कि मेरे लिए अभी प्रायोरिटी क्या सेट करनी है मुझे, और कहाँ पे दोनों पे बैलेंस कैसे सेट करना है। तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट आई ट्राई टू मेंटेन के एक बैलेंस बना रहे, ताकि मुझे मेरा काम भी अफेक्ट ना करे, और जो मेरा पैशन है या फिर मेरी जो फैमिली में मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो भी ना अफेक्ट हो। एंड इट इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, राइट? सब हाँ, मतलब कहीं कहीं किसी कोई ना कोई डिसअपॉइंट हो ही जाता है। बिल्कुल, ये मतलब तो लाइफ का है नियम। तो आप डायरेक्ट पूरा बैलेंस नहीं करके चल सकते हैं, बट इट्स टू ट्रूली आपने इम्प्रेसिव द भी फेस एबिलिटी किया टू होगा। मैनेज मल्टीपल रोल्स विद सच अ ग्रेस इज इंस्पायरिंग. इट्स रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रायोरिटाइज व्हाट रियली मैटर्स व्हाइल स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड. तो आपने काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है अपने आप को, मैं जो समझ सकता हूँ. और लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत इम्बैलेंस तो होता ही है. होता ही है, आपके साथ भी हुआ होगा जरूर। बिल्कुल, मेरे साथ तो मतलब ये डेली की कहानी है, बट फिर भी मैं करता रहता हूँ मैनेज जैसे भी. अ, तो आपने अभी मदरहुड की बात करी थी, राइट? सो हाउ इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग योर कोचिंग जर्नी एंड द वे यू कनेक्ट विद द अदर क्लाइंट्स और योर क्लाइंट, सॉरी. सो मेरी मदरहुड की जर्नी तो बहुत ट्रांसफॉर्मिंग हुई है। मतलब मैं एक और लेवल ऊपर आ गई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मदरहुड जर्नी। इट्स अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन माय कोचिंग जर्नी। सो इट हैड taught me the patience is the key, patience and on the entirely new level, and not just patient with yourself but with others as well. सो दोनों को पेशेंटली, मतलब एट टाइम्स बहुत ज्यादा इरिटेट फील करती हूँ, तो मुझे पता है कि नहीं, होल्ड योर हॉर्सेस, काम डाउन, हैव सम पेशेंस, द थिंग्स विल वर्क आउट। सो वो पेशेंस के साथ वो जर्नी को कैसे जॉय में एंजॉय करना, ये मुझे मदरहुड ने सिखाया है। एंड बीइंग एज अ मदर, इट अगेन वो एम्पैथी वाला तो आ ही जाता है, बिकॉज आपके सामने बच्चा बड़ा होता है, तो आप और ज्यादा एम्पैथेटिक होते हो, बिल्कुल. एंड आपको एक नया नजरिया भी मिलता है। एंड इट कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग मी के ये छोटी छोटी आप जो स्टेप्स ले रहे हो,
आज हम पॉडकास्ट में बैठे हैं यहाँ पे, मैं कुछ किसी दिन और कहीं पे बैठी हूँ, कोई और वीडियो बना रही हूँ, या फिर कोई कहाँ पे कोचिंग ले रही हूँ। सो ये छोटे छोटे सारे जो मैं एक स्टेप्स ले रही हूँ, दैट दैट मैटर्स। एंड इट इज ऑफ कोर्स this progress takes time, the patience, again patience, and also resilience along with the fun, because बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम ये सब कुछ करने में एक वो जो फन पार्ट होता है ना, वो मिस कर जाते हैं। सो हम्म। जब आप वो बच्चे के साथ खेलते हो ना, देन यू अंडरस्टैंडिंग कि नहीं यार, लाइफ में ये सब तो चलता ही रहता है, पर वो एक फन पार्ट कभी मिस नहीं करना चाहिए। सो मदरहुड ने ये मुझे बहुत अच्छे से सिखा दिया है, पेशेंस के साथ वो अपना फन मत मिस करो। बिल्कुल। It's a very heartfelt perspective, Yogita ji. It's wonderful how your experience as a mother has deepened your ability to connect with ट्रू others ट्रू ट्रू। and understand their challenges as well, right? तो ये और जो पेशेंस और resilience की आपने जो बात करी और एम्पैथी की बात करी, वो बिल्कुल एक बच्चे से बचपना जो रहता है, हमारे अंदर का जो बचपन याद आ जाता है, और हमारी एम्पैथिक और हमारे इमोशंस बिल्कुल आगे आते हैं, और वो हमारे लिए हेल्प करते हैं हमारे काबिलियत को आगे बढ़ाने के लिए, जो जिस फील्ड में आप हैं खासकर। करेक्ट। तो मैं एक कुछ एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डेली रिचुअल्स और हैबिट दैट यू स्वियर बाय दैट हेल्प्स यू मेंटेन योर माइंडसेट एंड एनर्जी? So if I talk about daily rituals में मेरा rituals more or less हाफ एन आवर का या फिर 45 मिनट्स का होता है, जिसमें हम्म। सबसे पहले तो द मोमेंट आई वेक अप, आई ऑलवेज विदाउट फेल आई ऑलवेज मेक श्योर दैट 2 to 3 मिनट्स में ग्रेटिट्यूड के लिए बिताती हूँ। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मनीष जी कि हम जो भी है जहाँ पे भी है, यू शुड फील ग्रेटफुल। बिल्कुल। सो इवन इफ अगर हम सांस ले रहे हो तो एटलीस्ट हम जिंदा तो है। किसी किसी ने तो मतलब सोते सोते ही अपना दम तोड़ दिया। सो ऐसी हर छोटी चीज के लिए हमें ग्रेटफुल रहना बहुत जरूरी है। और एवरी मेंटर इररिस्पेक्टिव, आप किसी के भी पास चले जाओ, और जस्ट मी कोई भी मेंटर, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हो, एनएलपी के हो, सही सभी मेंटर आपको सबसे पहले एक चीज सिखाते हैं, दैट बी ग्रेटफुल इनफ। सो मेरी दिन की शुरुआत 2-3 मिनट ग्रेटफुलनेस के साथ होती है, जहाँ पे मैं हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरी बॉडी का, मेरे फाइनेंस का, मेरी फैमिली का, मेरे ये जो पर्पस है उसका, मेरे प्रोफेशनल लाइफ का, मेरे जो मेंटर्स हैं, मेरे बॉसेस हैं, आई आई हैव सपोर्टिव बॉस। सो हर चीज का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा थोड़ी देर के लिए करती हूँ। एंड then I start my the next ritual, that is visualization and meditation. सो मेडिटेशन के लिए मैंने कम टाइम बिताती हूँ, विजुअलाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम बिताती हूँ। जैसे कि 5 मिनट्स का अगर विजुअलाइजेशन हो गया कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, क्लैरिटी मांगती हूँ। आई आस्क यूनिवर्स टू गिव मी क्लैरिटी, अब मुझे कौन सा स्टेप आगे लेना है। सो मैं वो विजुअलाइज करती हूँ। फिर मेडिटेशन के लिए मैं थोड़ा टाइम बिताती हूँ, और इन बिटवीन जैसे कि व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, या फिर कहीं पे भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो मैं और तभी मेडिटेशन कर लेती हूँ फॉर 5 to 10 मिनट्स। एंड देन आई गो टू द नेक्स्ट रिचुअल, दैट इज आई आइदर रीड द सेल्फ हेल्प बुक, ठीक है, फॉर सम टाइम, या फिर मैं ऐसा कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेती हूँ, दैट विल सेट द टोन ऑफ द डे। बिकॉज मनीष जी, आपने भी ये महसूस किया होगा, जब हमारा दिन बुरा जाता है ना, हम सुबह अगर खराब मूड के साथ उठते हैं ना, पूरा दिन का सत्यानाश हो जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये ग्रेटिट्यूड, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज भी एक बहुत पार्ट है, मैं भी करता हूँ वो। और रीडिंग, चाहे वो लिसनिंग ऑडिटरी मोड में हो, या फिर विजुअल मोड में हो, या फिर बुक मोड में हो, ये मैं फॉलो भी करता हूँ। ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, सच अ ग्रेट प्रैक्टिस, एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग हाउ स्मॉल एंड कंसिस्टेंट हैबिट्स can make such a huge difference in staying aligned and energized throughout the day in our daily life. करेक्ट। So I think I करेक्ट। request audience also to practice this, and uh, that's a very good practice actually. Gratitude, in fact, gratitude is a, I wrote, I think I read the book The Magic.
by Yes. Rhonda, right? So Rhonda Byrne, yeah. Rhonda Byrne, yeah. So that books actually talks so much, but I could not follow much. But only a small gratitude of 3-4 minutes is enough, I think. उसमें तो काफ़ी Yes, सारी एक्सरसाइजेस दी हैं, बहुत बहुत बड़ी है वो. बट करेक्ट करेक्ट। मतलब आप किसी मगर मतलब आप कुछ भी ना करो और सिर्फ शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर दो इन योर डेली रूटीन, थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। हाँ, वो आपके पास लौट के आती हैं. करेक्ट करेक्ट, एंड इट मल्टीप्लाइज बाय द वे। ओके, दैट्स यस। ग्रेट. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कैन यू शेयर सम सक्सेस स्टोरी और ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी ऑफ समवन यू हैव मेंटोर्ड. तो आई ओके, दिस इज गर्ल, नॉट गर्ल, गर्ल कहना गलत होगा, लेकिन एक लेडी आई थी मेरे पास। उनको मतलब वो एक नार्सिस्टिक बिहेवियर के कारण परेशान थी। मतलब वहां पे शी इज अ हाउसवाइफ एंड शी इज स्टिल इन टच विथ मी। शी इज अ हाउसवाइफ और वहां पे उसको हमेशा उसके जो घर में जो उसके इन लॉस थे, हस्बैंड है, वो सब उसको मतलब कहीं ना कहीं उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एंड शी ऑलवेज यूज टू फील अफ्रेड, अपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी बता नहीं पा रही थी। और हाँ वो हाँ. कॉन्फिडेंस तो भूल ही जाओ, वो सेल्फ वर्थ तो उन्होंने पूरी की तरह मतलब बर्बाद करके रखा था। सो व्हेन शी केम टू मी, आई स्टार्टेड टेलिंग हर दैट आप तो सबसे पहले तो इट इज योर जर्नी। तो सबसे पहले मैंने उसको मतलब सेल्फ हीलिंग के बारे में सिखाया। बिकॉज मनीष जी, हम कितना भी करें हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को देखने का नजरिया जरूर बदल सकते हैं। अगर लोग हमारे आसपास बदल नहीं रहे हैं, तो इट्स द टाइम टू यू चेंज योरसेल्फ। हम्म. तो मैंने उसे वही सिखाया कि देखो, लोग आपके पास आसपास है, वो बदले ना बदले, यू स्टार्ट चेंजिंग योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ हीलिंग। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हमने वो सेल्फ अपने अपने वर्थ को मार रखा है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस घुमा दिया है, मतलब वी आर नॉट लविंग आवर सेल्फ गुड इनफ। हम हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, चाहे वो कितने भी गालियां दे, हम उसी के पास जाते रहते हैं, वैलिडेट करते रहते हैं अपने आप को, एम आई डूइंग गुड, एम आई डूइंग गुड इनफ, नो ऑलवेज डाउटिंग आवर सेल्फ। और अगर हमने कुछ किया और उनको अच्छा नहीं लगा तो वो हमेशा वही फियरफुल मोड में रहती थी। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर सेल्फ हीलिंग, और धीरे धीरे उनको वो कॉन्फिडेंस आने लगा, एंड शी स्टार्टेड ओपनिंग अप। और अभी एक ये स्टेट है, अभी मतलब मेरी कुछ दिन पहले ही लास्ट वीक में ही बात हुई थी, शी वाज टेलिंग मी कि अभी मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने में डर नहीं लगता। एक टाइम पे उसको वो बात करने में भी डरती थी, लिटरली डरती थी। उसने मुझे यही बोला था कि मैं डरती हूँ उन लोग से। हाँ बट हाँ. आज आज वो अपना स्टैंड लेती है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में कतराती नहीं। और वो डर, अभी उसे वो डर भी निकल गया है। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है मनीष जी, हम ऐसे फील करते हैं और हम अपने नजरिए से देखते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती। बिल्कुल. और वही हुआ उसके साथ। जब उसने स्टैंड लेना शुरू किया ना, तो धीरे धीरे उसने पाया कि वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमन बनती गई। And I always share this story to, wherever I go, because her journey is, very inspiring. She is still serving, she has 2 kids. जिसको अभी वो और सेल्फ हीलिंग के बारे में सिखाती है, मेरे से मिलवाती रहती है। तो बहुत सारी चीजें उसने खुद से मतलब करी और खुद ट्रांसफॉर्म हुई, ऑफ कोर्स विद मेंटरशिप। हाँ, मतलब एक तरीके से ये ईगो वाली बात नहीं है, बट अपने आप को समझना और अपने आप को खुद को सेल्फ हील करना और दूसरों से वैलिडेशन लेना एक ईगो नहीं है, बल्कि एक ये खुद के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने जैसी चीज़ है, राइट? मैं जहाँ करेक्ट तक समझता हूँ. तो करेक्ट करेक्ट। बट मनीष जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहती हूँ। अगर जब हम कहते हैं कि मतलब दूसरों से वैलिडेशन करें, तो व्हाट इफ समवन क्रिटिसाइज यू पर्पसली, हम्म. तो फिर आप क्या करोगे? एक बार और बोलिए, आपने क्या बोला?
अगर आप जब बात कर रहे हो कि वो ईगो वाली बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट अगर किसी बंदे का इंटेंशन आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, आप जितना भी कुछ अच्छा कर लो, हाँ हाँ हाँ। तो फिर आप क्या ही कर लोगे। नहीं, उसमें फिर आपकी सेल्फ हीलिंग काम आएगी, राइट? तो यस, दैट्स वेयर द सेल्फ हीलिंग कम्स। वही मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं वही बोल रहा था। मतलब मेरा यस। कहने का ये मतलब था कि ये एक ईगो वाला इशू नहीं है कि या नॉट। अपने आप को वैलिडेशन लेने को अपने आप को कमजोर करना ही है एक तरीके से, मतलब यस यस। जो मेरी समझ है। यस यस। इवन इफ दे से गुड थिंग्स और बैड थिंग्स, आपको वो मैटर नहीं करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट सेल्फ हीलिंग टीचर्स अस। कि ओके जो भी ओके। है, यू आर यूनिक, और आप अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हो। सो अगर सामने वाला आपको अच्छा भी बोले या बुरा भी बोले, यू नो योर वर्थ, और आप अपना अच्छा और बेस्ट काम करते रहो। और वही हमें सेल्फ हीलिंग सिखाता है। It's an incredible story you shared, right? And I think it also teaches me, or it might be teaching others, our audience also, a lot of good things, right? I'm sure this will inspire many listeners to take a leap of faith and understand more about self healing from you. What are some common beliefs or common limiting beliefs you have encountered in your clients, and how do you help them break from these patterns? तो इफ आई टॉक अबाउट कॉमन बिलीव्स में मुझे, जब मैं ये सेल्फ फीलिंग सिखाती हूँ, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बिलीव्स आई एनकाउंटर विद माय क्लाइंट दैट दे आर नॉट फीलिंग गुड इनफ, Hmm. दे डोंट डिजर्व सक्सेस। मतलब ये तो अमीर लोग का काम है, मैं कहाँ, मतलब मैं तो आम आदमी, मुझसे क्या हो पाए। सो ये सारी चीजें मतलब बहुत मेरे सामने आती हैं जब जब कभी भी मैं बात करती हूँ। एक तो उनका सेल्फ सेल्फ इमेज या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो डगमगाया हुआ होता है, और कहीं ना कहीं वो डाउटफुल नजरिए में से ही अपने आप को देखते रहते हैं, बिकॉज ऑफ द एनी ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, या फिर सोसाइटियल हमारी कंडीशनिंग होती है। ठीक है, हमेशा अगर हम कुछ अच्छा करने जाए तो या तो फिर हमें कोई पेरेंट्स डांट देता है, या फिर कोई हमें टीचर बोल देती है यू आर स्टूपिड। सो कहीं ना कहीं वो पास्ट ट्रॉमा या पास्ट एक्सपीरियंस से ये एक बिलीफ बन जाती है दैट समवेयर वी आर नॉट गुड इनफ, एंड दैट्स हाउ वी आस्क फॉर द एक्सटर्नल वेरिफिकेशन या वैलिडेशन के लिए हम एक्सटर्नल पूछते रहते हैं, बिल्कुल। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पास्ट एक्सपीरियंस। और दूसरा दूसरा मैं अगर आपको बोलूं तो बहुत बहुत कॉमन है ये, दैट आई एम टू ओल्ड, इट्स लेट फॉर मी टू मेक चेंजेस। या या। ये मतलब बहुत टाइम में सुनते रहती हूँ कि मैम अभी क्या ही करना है, अब कहाँ हमसे ये सेल्फ फीलिंग होती है, आप क्या बात कर रहे हो। सो ये एक कॉमन बिलीफ है, आई एम नॉट गुड इनफ के साथ, आई एम टू ओल्ड, मेरे लिए ये है नहीं, ये बहुत लेट हो गया है। और इसी वजह से आई हेल्प क्लाइंट्स टू, पहले तो ये पैटर्न्स ब्रेक करो कि आप कहीं से भी शुरू कर रहे हो, वो आपका बेस्ट प्रोग्रेस है। चाहे आप 20 ईयर्स से भी स्टार्ट कर रहे हो या फिर 65 ईयर्स से भी स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले अपना पैशन ढूंढो और अपना माइंडसेट, नजरिया देखने का शिफ्ट करो। आइडेंटिफाई द रूट कोर्स, जो बिलीव्स बनी पड़ी है उसके इर्द गिर्द, उसका हम्म। रूट कोर्स फाइंड आउट करो। और फिर मैं ये सारी एनएलपी टेक्निक्स उसको लगा के, फिर सेल्फ हीलिंग के जर्नी के मदद से, ये जो भी नेगेटिव बिलीव्स है, और स्पेशली ये फाइनेंशियल में, मतलब पैसे के लिए तो हमने बहुत सुना है, जैसे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जितनी चादर है मतलब उतने ही पैर पैर पसारो। फैलाओ। यस 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 यस। अगर कोई अमीर बंदा है तो उसने पैसे आइदर ब्लैकमेल से कमाए हैं, या फिर अमीर लोग सेल्फिश होते हैं। ये सारे बिलीव्स में मतलब बहुत सुनती हूँ, और इसकी वजह से ही वो स्टक हो जाता है। सो ये सर, ये जो भी मैं टेक्निक सिखाती हूँ, सबसे पहले तो मैं उनका एक अवेयरनेस मोड में लाती हूँ, एंड देन आई स्टार्ट, फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्ट changing their perspective, changing their belief, and breaking their unwanted beliefs. That's Yes, such Manish. a relatable point. So many us struggle with the same thought process, same belief. It's great to hear how you guide your people
to replace them with the empowering thoughts, Yogita ji. And thanks Thank for you. sharing that perspective. Uh, so, in today's fast paced world, how many people feel stuck or overwhelmed? What advice would you give to someone who is struggling to find clarity or purpose? So if I talk about, if anybody wants to change themselves and change their mindset and realities, सबसे पहले तो it starts whenever if you are feeling stuck, then it starts from shifting your focus. Often we feel stuck because we are too caught up. Problems ही problems हमें दिखाई देती है. Hmm. एंड एट टाइम्स हमें डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी सामने भी है, लेकिन हम इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं प्रॉब्लम से कि हमें प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपॉर्चुनिटीज भी सामने नहीं दिखाती. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर इफ यू आर फीलिंग स्टक, देन टेक अ स्टेप बैक. ठीक है, एक कदम पीछे लो, रुक जाओ, पॉज करो एंड आस्क योरसेल्फ, व्हाट एम आई डूइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या मैं कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली. अगर इनफैक्ट अगर एक स्मॉल स्टेप भी होगा ना, तो भी वो आपकी जर्नी आसान बना देगा. सो wherever you feel that you are feeling stuck, then it's the time to change. या फिर आप एक ग्रोथ के लिए एक स्टेप लो. एंड इट ऑल स्टार्ट्स when you start believing in yourself. Believe in yourself that you can change your reality, you can change your circumstances, whatever happened that was in past. ठीक है, अपना अपनी जिंदगी एक नए नजरिए के साथ जियो. अपना माइंडसेट जो अपना प्रॉब्लम्स की तरह आपका जो फोकस है, जो पूरे प्रॉब्लम्स की तरह आपको परेशान कर रहा है, हर नेगेटिविटी में जा रहे हो, हर हर चीजें आपको मतलब बुरी तरह से सुनाई दे रही है, आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, तो इट्स द टाइम टू चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड एक्सप्लोर न्यू पर्सपेक्टिव. नया नजरिया देखो. बिकॉज देखिए मनीष जी, चीजें ना ओवरनाइट कुछ चेंज नहीं हो जाती. दिस इज द प्रोग्रेस एंड प्रोसेस, एंड प्रोसेस टेक्स टाइम. अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं बहुत नेगेटिव इंसान हूँ, तो कल के कल मैं पॉजिटिव नहीं हो जाने वाला. बट उसके लिए हमें कंटिन्यूस स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कंटिन्यूस एक्शंस लेने पड़ते हैं. एंड इट्स अ जर्नी and not a destiny. Continuous journey towards your self healing and self development. So take small steps. ठीक है, अगर कहीं पे भी अगर आप स्टक फील कर रहे हो, रुक जाओ और पूछो अपने आप को, सवाल पूछो. सबसे बेस्ट है, हर चीज के लिए सवाल पूछो. अगर आपकी लिमिटिंग बिलीव्स भी है तो उसके लिए सवाल पूछो कि अगर आज मैं फाइनेंशियली स्टक हूं, तो क्या, क्यों हूं सबसे पहले, और क्या ये सच्चाई है. इफ नॉट, देन चेंज योर पर्सपेक्टिव. बिकॉज अगर आप ये मानते हो कि आई एम नॉट गुड इनफ, या फिर मैं ये पैसा डिजर्व नहीं करती, तो ये रियलिटी बाकी लोग के लिए सच नहीं है. तो अगर आपने ये सच मान के रखी है, तो क्वेश्चन मार्क दैट एंड स्टार्ट ब्रेकिंग दोस Myths. negative beliefs. Yeah. So take these small steps to change your reality whenever you feel stuck in your life. बहुत ही एक्सीलेंट एडवाइस है. अपना आत्मविश्लेषण करें योगिता जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फोकस ऑन स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स rather than feeling overwhelmed or stuck by a big picture. I'm sure this will resonate with lot of listeners. True. So I would rather ask now, what challenges have you faced in your journey as a coach and how you have grown from them? मैंने तो बहुत सारे डिफिकल्टीज देखी है. मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ही. मतलब मनीष जी, आप सोचिए ना, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है, आई 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 वेंट टू अ पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, जिसको मतलब लोग वहां पे भी, मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मेरे जो फ्रेंड्स थे, वो स्ट्रीट्स पे रहते थे. वो लोग के साथ मैं पली बड़ी. Hmm. अब वैसे बैकग्राउंड से यहाँ तक आना, इट्स इट्स डेफिनेटली चैलेंजिंग रहा मेरे लिए.
और बहुत सारे ब्रेक थ्रूज आए। वन ऑफ देम आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि वो बुक मेरे हाथ में मिली। प्लस मैंने बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल लॉसेस भी, बिकॉज ऑफ दिस बिलीव्स, मैंने ये फाइनेंशियल लॉसेस भी, आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट कि मैंने ये सारे लॉसेस से भी गुजरी हूँ। सो मेरी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, स्टार्टिंग फ्रॉम जहां से मैं बिलोंग करती हूँ उससे ऊपर आना, फिर इंग्लिश में फ्लुएंसी पाना। बिकॉज जब मैं कॉलेज में थी तब मैं मेरे फ्रेंड्स से भी, फ्रेंड्स बनाने के लिए भी मुझे दिक्कत होती थी, बिकॉज ऑफ द दिस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के मेरे से मतलब कौन नहीं बात करेगा। आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम, सो मैं इंग्लिश में जो भी बात करते थे मैं डर जाती थी, बाप रे क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वैसे मतलब वहां से फिर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान बनना, फिर अपने आप को जानना, एक वो सेल्फ हीलिंग की जर्नी के, और जर्नी से मैं मतलब गुजरी हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम डाउटिंग माय ओन सेल्फ, ठीक है, जो भी पास्ट ट्रॉमा से, उससे उससे उभरना। तो धीरे 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 यूनिवर्स मुझे गाइड करता रहा, और साथ में ये भी समझाता रहा कि तेरे पास वो सारी क्वालिटीज मैंने तेरे को डेवलप करके दी है जो एक मेंटर में होनी चाहिए। वो भी मुझे साथ साथ में वो रियलाइजेशन होता रहा, और धीरे धीरे फिर मैं सेल्फ हीलिंग की ओर बढ़ी। आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। whoever is listening, viewers, you must understand, start loving yourself. The moment you start loving yourself unconditionally, आपका आधा काम वहां पे हो जाता है। बिकॉज जैसे आप अपने आप को प्यार करने लगते हो, आपका सबसे पहले तो सेल्फ बिलीव या सेल्फ वर्थ बढ़ने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है ना, द थर्ड वेरी थिंग इट इज, यू टेक स्टेप्स। आप एक्शन लेना चालू करते हो, प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाता है, आप एक्शन लेना चालू कर देते हो। और जैसे ही एक्शन लेना चालू कर देते हो, आप अपने पर्पस को जीते हो। चाहे आप काम करते हो, मतलब आप कोई जॉब में हो, या फिर आप एक हाउसवाइफ क्यों ना हो, आप एक स्टूडेंट क्यों ना हो, जो भी आप कर रहे हो आप अपना बेस्ट दो। और ये छोटे छोटे जो सेटबैक है ना, उससे डरो मत, बिकॉज ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। सी, सक्सेस आपको कभी नहीं मिलेगी, आपको फेलियर से गुजरना ही पड़ेगा, चाहे वो फेलियर छोटा हो या बड़ा हो, बट दैट्स द पार्ट ऑफ योर जर्नी, यू कैन स्किप इट। आप स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यस, सक्सेस पाने के लिए, आप सबकी डेफिनेशन भी सक्सेस के लिए डिफरेंट होती है, लेकिन सक्सेस पाने के लिए भी आप ये जो भी हर्डल्स है ना, उससे भी गुजरते रहो, एंड नेवर एवर Give गिव up. अप। यस। Truly inspiring to hear that you have turned your challenges into opportunity. और आत्म विश्लेषण और आपने जो भी इतनी सारी चीज़ें शेयर करी, इट शोज़ द पावर ऑफ परसिवरेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस. एंड थैंक यू। so what are the most misconception people have about manifestation and self healing? So when I talk about misconception about self healing is, okay, self healing is all about knowing your true self. So manifestation, when I say, it's way different from self healing. सेल्फ हीलिंग में हम क्या करते हैं, सेल्फ हीलिंग में अपना खुद को जानो, खुद की अवेयरनेस क्या है, ठीक है, हमें कौन से ऐसे इमोशंस है जो हमें ट्रिगर करते हैं, हमारे पास्ट के कौन से ऐसे ट्रॉमास है, उस पे हम काम करते हैं। एंड मिसकंसेप्शन एंड द मैनिफेस्टेशन इज क्वाइट ऑपोजिट। सो जब हम सेल्फ हीलिंग की बात करते हैं तो हमेशा मनीष जी आपने ये सुना होगा, अरे ये तो बड़ी खुदगर्ज हो गई है, किसी की और ही नहीं है, हमेशा अपने ही बारे में बात करती रहती है, क्या है लव योर सेल्फ। जैसे मैंने मतलब वो करीना कपूर का वो कभी खुशी कभी गम, आई लव Uh, यू, आई लव माई सेल्फ, yeah, वैसे yeah, yeah. It's a famous या dialogue, right? या सो जब कभी भी हम सेल्फ हीलिंग की बात करते हैं ना, तो ये हमेशा सुनते हैं कि तुम तो स्वार्थी बन गई। बट मनीष जी, स्वार्थी स्वार्थी का
डेफिनेशन लोगों ने गलत बना के रखा है। स्वार्थी मतलब क्या? स्व स्वे अर्थ, यानी मुझे किसी चीज से खुद का एक मीनिंग मिल रहा है, खुद का एक लाइफ का नजरिया मिल रहा है, तो क्या स्वार्थी होना गलत है? सो ये एक मिसकंसेप्शन बहुत है। जब हम सेल्फ हीलिंग की बात करते हैं तो हमेशा यही सुना जाता है कि ये मतलब खुदगर्ज हो गई है, इसको तो खुद की ही पड़ी है। बट सेल्फ हीलिंग इज वेरी डिफरेंट, because the moment you start loving yourself, start understanding yourself, you will give more to the society. एब्सोल्युटली। इमेजिन मनीष जी, अगर आपके पास ही कप खाली पड़ा है तो आप दूसरों को कैसे पोर करोगे? आपके पास ही प्यार की कमी है तो आप दूसरों को प्यार कैसे दे पाएंगे? सो ये एब्सोल्युटली, इट्स सो एन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बड़ा डिस्टिंक्शन। यस यस, सो ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन आता है व्हेन इट कम्स टू सेल्फ हीलिंग, व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इट्स ऑल अबाउट, अब मैनिफेस्टेशन में भी बहुत सारे लोग टेक्निक आजकल, मैनिफेस्टेशन इज वेरी कॉमन, सबने हम्म। सुन के रखा है। बट होता क्या है मनीष जी कि सबको रिजल्ट्स क्विक चाहिए। अब वो रिजल्ट्स क्विक के चक्कर में ना, जो नहीं चाहते वो भी अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी होता क्या है आजकल के, जैसे मैंने आपको बताया, पीपल आर वेरी इम्पेशंस। जनरेशन आज की मतलब थोड़ी इम्पेशंस हो जाती है, तो सब कुछ उनको क्विक फिक्स चाहिए होता है। तो बिल्कुल। अगर एक चीज पे एक टाइम पे उन्होंने कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश की और उनको मिला नहीं, या फिर उसका कुछ और उल्टा मिल गया, देन दे स्टार्ट के नहीं यार ये तो मतलब क्या ही है, ये कुछ काम नहीं करता। पर मैनिफेस्टेशन के लिए हमें एक राइट टेक्निक की जरूरत होती है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मनीष जी। जब भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो ऑफ कोर्स हमें विजुअलाइजेशन तो करना ही है, हाँ। लेकिन हमें वो विजुअलाइजेशन के बार बार ये सोचते नहीं रहना है कि अरे मैंने वो करना है करना है करना है करना है करना है करना है। इट्स लाइक कि आपने अमेजोन से एक ऑर्डर कर लिया, ठीक है, अब आप वो कंटिन्यूस करते रहेंगे कि कभी आ रहा है डिलीवरी, कभी आ रहा है, वो नहीं होगा, राइट? इट टेक्स टाइम। अब वो चाहे एक वीक का टाइम हो या फिर 2 दिन में आ रहा हो। Similarly, when it comes to manifestation process also takes time. But again, it depends on your intensity, how deeply you desire that particular thing. So manifestation be progress takes time. So ये ओवरनाइट नहीं होता है, और अगर कुछ चीजें रॉन्ग होती है सो इट डजंट मीन कि वो काम नहीं करता। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, but it is actually working for you, because you are keep on reminding yourself and keep on saying yourself that it doesn't work. The moment you say it doesn't work, it is actually happening with you. Yeah, yeah. Yeah, it's great to hear to address these misconceptions and clarifying how these tools truly work when applied correctly. So, thank you very much for sharing this. So, finally, where can our audience connect with you and learn more about your work? So to know more about myself and about my work, you guys can always reach out to me. I have a YouTube channel called Yogita Rathod. I have, you can reach out to me either on WhatsApp or on Instagram, or you can connect me over the LinkedIn. I'll share all my link details over the in your comment box, so people, viewers can easily reach out to me. Sure. Thank you so much for sharing very beautiful thought about the neuro linguistic processing, law of attraction, manifestation, and very powerful techniques you suggested to our listeners. And I truly believe, and I will also practice some of these techniques along with you. I'm sure many Definitely. listeners will be reaching out to learn more about these and connect with you after hearing this inspiring journey of yours. And thank you very much for today's podcast.
Thank you so much, Manish ji, for inviting me. It's like great, having a conversation with you. Viewers को भी, of course, बहुत सारा एक नया perspective मिलेगा. After all, it's all about shifting the perspective. That's how it is mind shift mentor. So yes, Absolutely. बहुत बहुत एक नया नजरिया भी मिलेगा, नई चीजें जानने का भी मौका मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स एनी टाइम पीपल कैन रीच आउट टू मी, आर easily accessible. And yes, as I said, I am on the mission to help 10 lakh people by 2013. So I will serve my passion with, I will serve this purpose with passionately. So thank you so much, Manish ji, once again for inviting me here. Thank you very much, and all the best for your mission. Thank you. And I think hopefully you will definitely achieve this. Thank you very Thank you. much. Thank you so much. Thank you. Thank you.